हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 7th ਕਲਾਸ ਦੀ ਜੀਕੇ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਚੈਪਟਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। 5 ਚੈਪਟਰ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ ਆ ਬੇਟਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕਰੰਸੀ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। देखो, कुछ ऑफ द रीड द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट इंडियन करेंसी एंड स्टेट द समरी इन द गिवन ब्लैंक्स। यू मे यूज़ द हेल्प बॉक्स। सो सब तो पहला जोड़ा एक पिक्चर देती हुई दिग्स किंग्स रुपया बिकेम द फोरनर ऑफ द मॉडर्न रूपी। ठीक है, इस जोड़ा इन्होंने ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਗ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਮ ਸੀ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਰਨ ਰੁਪੀ ਆ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ 'ਤੇ 100 ਰੁਪੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਦਿਸ ਕਿੰਗਸ portrait was in India's paper currency in 1923। ਇਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਆ, ਉਸ ਕਿੰਗ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਆ? ਕਿੰਗ ਜਾਰਜ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਸਤੋ ਸਪੈਲਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆ ਸਾਰੇ ਸਪੈਲਿੰਗਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਕਿੰਗ ਜਾਰਜ ਵੀ ਦੇ, ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥਰਡ ਵਨ ਇਸ ਦਾ ਆ ਕੁਝ ਕੁਆਇਨਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਬੇਟਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ। 1 ਪੈਸਾ, 2 ਪੈਸਾ, 3 ਪੈਸਾ, रुपया का 10वां भाग पैसे, 20 पैसा, 25 पैसे। सो डिनोमिनेशंस ऑफ द 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, 5 पैसा, 25 पैसा वाली सर्कुलेशन टेक प्लेस। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਪੂਰੇ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਰੰਸੀ ਹੈ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ? 30 ਜੂਨ 2011 ਤੱਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ फोर्थ वन इज़ दिस इज़ 10,000 रुपीज़ नोट। ठीक है, और इट वाज द हाईएस्ट डिनोमिनेशन करेंसी नोट प्रिंटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन इट्स हिस्ट्री। रिजर्व बैंक ने जी साड़ी सेंट्रल बैंक है इंडिया की, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होंगी है। देखो नोट्स के उपर लिखा होंगे, तुम पढ़ भी सकते हो। अजकल के नोट्स के उपर भी लिखा होंगे। ठीक है, जी कि नोट छापन के करंसी ਨੂੰ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਈਐਸਟ ਕਰੰਸੀ ਸੀਗੀ ਇਸ RBI ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਟ ਵਾਜ਼ ਇਨ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਸਰਕੂਲੇਟ ਹੋਈ ਹੈ? 1938 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1946 ਤੱਕ ਇਹ ਸਭ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕੂਲੇਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ 1954 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ 10,000 ਰੁਪੀਜ਼ ਦਾ ਨੋਟ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਦੈਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਡੇਟਸ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। 1938 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਰੀਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ 1954 ਦੇ ਵਿੱਚ। फिर इन्होंने आफ्टर उस तो बाद 1978 के बिल्कुल ही बंद कर दिता गया। अंडरस्टूड है। फिर नेक्स्ट टाइम द बेटा दिस इज़ 1 रुपीज़ नोट। ऑल नोट्स एक्सेप्ट दिस नोट्स आर प्रिंटेड बाय RBI। दिस नोट इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये जोड़े बेटा ये एक खासियत है 1 रुपये की। ਇਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੋਟਸ ਆਪਣੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ RBI ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਬਟ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 1 ਰੁਪੀਜ਼ ਦਾ ਨੋਟ ਹੈ ਇਹ ਕੌਣ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਫਾਈਨੈਂਸ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਰਦੀ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਨੋਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਫਾਈਨੈਂਸ ਉਹਦੇ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਸ ਨੋਟ ਦੇ। ਬਾਕੀ ਨੋਟਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੋਟਸ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ RBI ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਸੀ ਆ
10 रुपीज़ 20 रुपीज़, ठीक है, 100 50 150 200 1000 500, ठीक है। सो वो ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਸ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੋਟਸ 'ਤੇ ਬੇਟਾ RBI ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਦੇ RBI ਗਵਰਨਰ ਆ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਸ਼ਕਤੀ ਕਾਂਤ ਦਾਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਰਘੂ ਰਾਮ ਰਾਜਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਬਟ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਸਾ ਨੋਟ ਆ ਜਿੱਥੇ RBI ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਾਈਨੈਂਸ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟਾ 6 ਇਹ 500 ਦੇ ਨੋਟਸ 'ਤੇ ਆ ਪਿਕਚਰ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਨੋਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹਾ। ਫਰੰਟ ਸਾਈਡ ਆਫ ਦਾ ਕੰਸਟਰ ਆਫ 500 2000 ਹੈਵ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸ਼ੇਪਸ ਵਿਦ ਅ ਡਿਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਇਨ ਵੇਸਟ ਪ੍ਰਿੰਟ that have visually impaired persons to identify the denomination। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟਾ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਭਰਿਆ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਹ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। 500 ਦਾ ਨੋਟ ਆ, 10 ਰੁਪੀਜ਼ ਦਾ, 20 ਦਾ 1000 ਦਾ। ਅੰਡਰਸਟੂਡ। ਸੋ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਦਾ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਫ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਰੈਲੀ ਸਾਈਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਬਰੈਲੀ ਸਾਈਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੇਟਾ 10 ਰੁਪੀਜ਼ ਦੇ ਨੋਟ 'ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? 15 ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਲਿਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਦਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ 15 ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਉਹ ਪਰਸਨ ਆ ਇਨ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਇੰਡੀਅਨ ਰੁਪੀਜ਼ ਸਿੰਬਲ। ਇਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਿੰਬਲ ਲੈਟਰਸ ਆਰ ਦੇਵਾਨਗਰੀ ਲੈਟਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਦਾ ਸਾਈਨ ਆਫ ਦਾ ਇਕੁਐਲਿਟੀ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ? ਸਾਈਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ। 2 ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨਸ, ਆ ਦੇਖੋ 2 ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨਸ ਬਸ ਆਰ ਇਹਦਾ ਗੱਲ। ਸੋ ਦਿਸ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੈਟ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ। ਇਹ ਕੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਆ? ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਕਰਦਾ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ? ਡੀ ਉਦੈ ਕੁਮਾਰ। ਇੱਥੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਦੈਨ ਬੇਟਾ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 500 ਰੁਪੀਜ਼ ਦਾ ਨੋਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਬਲੂ ਗ੍ਰੀਨ ਸਟ੍ਰਿਪਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇ ਆਰ ਨੋਟਸ 500 2000 ਹੈਵ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਂਡ ਵਿਚ ਚੇਂਜਿਸ ਟੂ ਬਲੂ ਵੈਨ ਦਾ ਨੋਟ ਇਜ਼ ਟਾਈਟਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੂਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਲਾਈਟ, ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਲੂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਹੈ ਬਲੂ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਥਰੈਡ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਬੇਟਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਸ ਆਰ ਨਾਟ ਮੇਡ ਆਫ ਪੇਪਰ। ਇੰਡੀਅਨ ਕਰੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਪਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਬਟ ਮੇਡ ਆਫ ਦਿਸ ਮਟੀਰੀਅਲ। ਇਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕੀ ਬੋਲਦੇ? ਕਾਟਨ ਐਂਡ ਕਾਟਨ ਰੈਗ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਕਾਟਨ ਐਂਡ ਦਾ ਕਾਟਨ ਰੈਗ। ਇੱਥੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਾਈਟ ਸਾਈਡ ਪੈਨਲ ਆਫ ਦਾ ਨੋਟਸ ਹੈਵ ਵਾਟਰਮਾਰਕ ਔਨ ਦਿਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ। ਵਾਈਟ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦੇ ਇਹ ਪਿਕਚਰ ਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੇ ਕੁਛ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਸੀਗੇ ਬੇਟਾ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕੁਇਜ਼ ਟਾਈਮ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਵਰਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਪਣੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਓਕੇਜ਼ਨਸ 'ਤੇ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਟਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਰਲਡ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਡੇ। ਵਰਲਡ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਡੇ ਕਦੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਦਰਸ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ 2nd ਸੰਡੇ ਆਫ ਮਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੂਮੈਨਸ ਡੇ 8 ਮਾਰਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਰੀਟਾਈਜ਼ ਡੇ 30 जनवरी। यूनाइटेड नेशन डे अक्टूबर 24। ह्यूमन राइट्स डे बेटा ਹੁੰਦਾ ਹੈ December 10। इंटरनेशनल लिटरेसी डे ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ September 8। वर्ल्ड एड्स डे December 1। फादर्स डे 3rd संडे ऑफ जून। चिल्ड्रन डे ये ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ही है 14 नवंबर। फिर वर्ल्ड वेजिटेरियन डे October 1। एंड नैशनल साइंस डे ਹੁੰਦਾ बेटा 28 फरवरी। अंडरस्टूड।
ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज है तुहानूं पता होने चाहिए, तुहाडी जनरल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। कंपीटीटिव एग्जाम्स ये अक्सर पूछे जाते हैं, जो तुसीं हायर कंपीटीटिव एग्जाम्स देने ना बेटा, तो उहदे विच भी ये पूछन जाणगे। अंडरस्टूड है। सो एक इन्होंने बेटा एक चीज़ नहीं लिखी, इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। आ देखो आ बॉक्स के 21 जून, ठीक है। सब तो पहला इंटरनेशनल डे कदों मनाया गया 21 जून 2015। फिर उस तो बाद 2015 तो बाद लगातार इंटरनेशनल डे जोड़ा है मनाया जा रहा है, ठीक है। सो नैक्सट आंदा बेटा अनयूजल एनीमल्स। ये असी मैं जी सब तो पहली वीडियो सी वो पाया होया सीगा अनयूजल डेज जोड़े होंगे, ठीक है। और ये सब तो पहला आंदा स्नेक दिता होया, दिस स्ट्रेंज एनिमल एक्सपैंड्स द बैक पार्ट ऑफ इट्स बॉडी टू रिजेंबल ए स्नेक इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ। इट इज़ फाउंड इन कोस्टा एंड बेलीज वीलाइज मैक्सीको, ठीक है। इनू स्नेक कैटरपिलर बोलते हैं बेटा। ये इहदा मेन फंक्शन आ देखो, फंक्शन का नहीं बोल सकते, यदि करैक्टरिस्टिक बोल सकते हैं। ये इत्थों यदी चौड़ाई घट आ देखो, बट ये जिन्ना लंबा होगा वो जी चौड़ाई यदी वधदी जाती है, चौड़ाई वधदी, ठीक है। सो अपने आप में बचाने वास्ते ये जी है अपनी चौड़ाई जी है वो इनक्रीज़ कर लेंदा। अंडरस्टूड है। तो इसमें असीं की बोलते हैं स्नेक कैटरपिलर। दूजे नंबर का दिस लेजी फिश इज़ फाउंड इन आस्ट्रेलिया। ये जी फिश आ कितने पाई जाती है, आस्ट्रेलिया के जाती है। एक ये वर्गी होंगी सी वीड, समुंदर के जोड़े बूटे वगैरह होंगे ना पाए जाते हैं। ये फिश है बट यदा स्ट्रक्चर देख लो किस तरह का, जिदा कोई टाणी होंगी है, ब्रांच होंगी है किसी ट्री की, ठीक है। लीफी लाइक ट्री, इन्हू लीफी सी ड्रैगन बोलते हैं इसमें। इस फिश का की नाम है लीफी सी ड्रैगन। फिर उस तो बाद इट लुक्स लाइक ए डिकेइंग लीफ, थर्ड वन इट इज़ फाउंड इन मेडागास्कर। ये भी एक एनीमल है, ठीक है। और यदा नाम है इतने स्पैलिंग्स बेटा थोड़े जी मिसटेक्स हो सकते हैं, वो असीं देख लें। इनू असीं बोलते हैं बेटा सैटैनिक लीफ टेल्ड गेको, ये स्पैलिंग है सैटैनिक लीफ टेल्ड गेको। और यदा स्ट्रक्चर देख लो, जिदा गले सड़े पत्ते ही नहीं होंगे, लगता है उदा का, बट एक एनीमल है, ठीक है। फिर उस तो बाद बेटा आ जाता इट इज़ कंप्लीटली ब्लाइंड, इट हैज़ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेंस ऑफ यूजिंग केमिकल एंड इलैक्ट्रिकल सिग्नल्स इन इट्स ब्रेन सेंट बाय रिसेप्टर्स इन इट्स बॉडी, ठीक है। एक पूरी तरह ब्लाइंड होता है, देख नहीं सकता एनीमल ये, ठीक है। बट ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेंस ऑर्गनस प्रेजेंट होंगे हैं, कैमिकल्स प्रेजेंट होंगे हैं, इलैक्ट्रिकल सिग्नल्स प्रेजेंट होंगे हैं ब्रेन के जोड़े भी सिग्नल सेंड करते हैं वो बॉडी रिसेप्टर्स में। सो इसका नाम की है ओलम, OLM, ठीक है। फिफ्थ वन इज़ बेटा दिस एनीमल हैज़ ए ट्रांसपेरेंट स्किन। इस एनीमल की स्किन सारी ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट मतलब असी खुद ये जोड़े अंदरले ऑर्गनस ना, जिदा हार्ट हो गया, इंटेस्टाइन हो गई, एलीमेंट्री कैनाल हो गई, वो सारा कुछ असी देख सकते हैं, ठीक है। लिवर हो गया इहदा। सो ये कितने पाया जाता है, USA के पाया जाता है। इसनों असी ग्लास फ्रॉग बोलते हैं। अंडरस्टूड। उस तो बाद बेटा नैक्सट आ जाता कुछ क्विज टाइम देते हुए हैं। इट हैज़ 3 हार्ट्स एंड एबिलिटी टू चेंज इट्स कलर। बेटा यदा नाम है ऑक्टोपस, इन्हू ब्लैंकेट ऑक्टोपस बोलते हैं। इसका नाम है ब्लैंकेट ऑक्टोपस। ये 3 हार्ट होंगे हैं, ये अपना कलर चेंज कर लेंदा, ठीक है। वैसे बेटा जोड़ा ऑक्टोपस दी अलग स्पीसी हुई है, एक ऑक्टोपस की ऐसी स्पीशी आ जिहदे 3 हार्ट होंगे हैं, ठीक है। 9 ब्रेन्स होंगे, 9 ब्रेन होंगे, ठीक है। नैक्सट आंदा इट इज़ अ पॉइजनस फैंग, इनू असी की बोलते हैं असैसिन स्पाइडर, असैसिन स्पाइडर, आ स्पैलिंग लिखी हुई है, ठीक है। आगे आंदा इट इज़ अ कलर ब्लाइंड हैज़ ए हेरी लेग्स दैट लुक लाइक विंग्स, इसनूं भी हेरी क्रैब बोलते हैं, ठीक है। यदा ब्लाइंड होंदा है, कलर दिखाई नहीं दिंदा, सानू नहीं कलर दिखाई देना इहदा, बट ये लैग्स जिहड़ियां होंदियां हेरी हेयर्स प्रेजेंट होंगे हैं, विंग्स वांग दिखाई देते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट एनिमल है।
ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਕੁਝ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਆ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਸ ਦੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਵਾਇਡ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਇਕੱਠੀ ਬੈਠੀ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ फ़ोन ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇਕੱਠੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਹੀ फ़ोन ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਗੇਮ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੇਮ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਸਾਨੂੰ ਹੈਪੀ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਬਾਈਕ 'ਤੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਾਰ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੁਛ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਬਾਈਸਾਈਕਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ फ़ੋਨ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਟਸ ਰੋਂਗ। ਸੋ ਇਹ ਵੈਰੀ ਡੇਂਜਰਸ ਆ, ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਟੂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ। थर्ड नंबर पे बेटा अवॉइड यूजिंग मोबाइल फोन बाय रीडिंग द बुक्स, कुकिंग न्यू डिशेज, एंजॉइंग योर फेवरेट एक्टिविटीज़। ठीक है। और स्कूल टाइम या स्टडी टाइम कह लो, ठीक है, तुसी तुहानूं जिहड़े मोबाइल फोन यूज़ नहीं करने चाहिए। ठीक है, बिना मतलब तो जे तुहाडा कोई स्टडी नाल रिलेटेड काम आ फिर तुसी करो, नैट ते सर्च करो, गूगल ते करो, बट बिना मतलब तो गेम्स खेडना ड्यूरिंग द स्टडी इट्स अ वेरी बैड हैबिट, और इसनूं असीं बोलते हैं रिक्रिएशन। अगेन द टू मच टेक्सटिंग ऑन मोबाइल फोन्स कॉजेज पेन इन्फ्लेमेशन इन द थंब एंड रिस्ट एरिया। जेकर ज़्यादातर असीं मोबाइल यूज़ करांगे साडे थंब ते पेन होगी, साडे जिहड़ी आ गोटा जिथे साडी मूवमेंट होगी उत्थे भी साडे प्रॉब्लम आ सकती है। सो इसका मतलब टू प्रिवेंट द इंजरीज। अंडरस्टूड। सो यूज़ ए हैडसैट, प्लेइंग लैस गेम्स, ये सारी चीज़ें तुहानूं देखनी चाहिए। अंडरस्टूड है बेटा। सो नैक्सट आंदा बेटा फेमस पेंटर्स, 10th चैप्टर है तुहाडा। ही वॉज द फेमस इंडियन पेंटर एंड फिल्म मेकर। हीज बेस्ट नोन वर्क्स इंक्लूड सूफी पेंटिंग्स, सुनहरा संसार, गाजा गमिनी, स्प्रिंकलिंग हॉर्सेस। His films includes Gaza Gamini and Meenakshi, A Tale of Three Cities। ये बंदा बहुत बड़ा फेमस पेंटर है, एक फिल्म मेकर भी है। इसनों असी ਇਹਦਾ नाम की है M.F. हुसैन। की नाम है M.F. हुसैन। ठीक है। दूजे नंबर पर आ जाता है ही वॉज द इटालियन रेनेसेंस पेंटर, स्कल्पचर, आर्किटेक्चर। He is the famous for the creating the fresco ceiling of the Sistine Chapel and sculptures that include Pieta and David। इसका की नाम है मैकलैंगो। ये नाम बेटा इसका मैकलैंगो। नेक्स्ट आइंदा ही वॉज द स्पेनिश पेंटर। वन ऑफ हिज द मोस्ट फेमस वर्क्स इन हिज डिपिक्शन ऑफ द जर्मन बॉम्बिंग एट गुर्जीनिया स्पेन। ठीक है। और इन्हें यदि एक बहुत बड़ा पेंटर है, ये सारे इसका नाम की है पैब्लो पिकासो। पैब्लो पिकासो। ही वॉज द इटालियन रेनेसेंस पेंटर, आर्किटेक्ट, इन्वेंटर, इंजीनियर, स्कल्पटर, फेयर फेमस मास्टरपीस पेंटिंग। और ये सानू पता ही है इन्हें एक पेंटिंग भी बनाई है मोनालिसा की। ठीक है, इन्हें कहते लियोनार्डो दा विंसी। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट साढ़े फेमस पेंटर से तुहानू पता होनी चाहिए इन्होंने बारे। ठीक है। सो कुछ आ पिक्चर्स आ, ये तुहाडा होमवर्क है बेटा, ये तुसीं खुद करना है क्विज टाइम। अंडरस्टूड। तो बेटा नैक्सट चैप्टर है तुहाडा वर्ल्ड फेमस म्यूजियम्स। ठीक है, ये पिक्चर्स दी हुई हैं, असीं उन्हें आइडेंटिफाई करना है। तो सब तो पहला साडा आ जांदा इट इज़ द ओल्डेस्ट एंड द लार्जेस्ट म्यूजियम इन जापान। कित्थे की नाम है इसका? टोक्यो नेशनल म्यूजियम, जापान। हुण देखो बेटा क्वेश्चन तुहानूं इस तरह भी आ सकदा कि ओल्डेस्ट ते लार्जेस्ट म्यूजियम किहड़ा जापान च, उसका नाम है टोक्यो नेशनल म्यूजियम। ठीक है, बट क्वेश्चन सैकेंड क्वेश्चन ये बनता है टोक्यो नेशनल म्यूजियम कित्थे पाया जाता है? वो जापान दे विच। अंडरस्टूड है। सो दो किसी तरह भी क्वेश्चन तुहानूं आ सकता है। सैकेंड वन इज़ द इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड मोस्ट विजिटेड एरिया म्यूजियम इन द वर्ल्ड, जिथे ज़्यादातर लोग विजिट करते हैं। फेमस है एग्जीबिट इन लियोनार्डो दा विंसी पेंटिंग मोनालिसा। ठीक है, उसकी एग्जीबिशन लगती है जी लियोनार्डो दा विंसी ने पेंटिंग बनाई सी मोनालिसा की, यदि इत्थे एग्जीबिशन। इसका की नाम है लॉरे म्यूजियम। ठीक है, आ स्पैलिंग तुसीं लॉरे म्यूजियम। ठीक है, कित्थे पाया जाता है ये भी तुहानूं पता होना चाहिए, पेरिस फ्रांस के विच।
ठीक है। सो एक क्वेश्चन के विचों दो टाइप्स के क्वेश्चन निकलते बेटा, दोनों ही पता होने चाहिए तुहानूं। इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट म्यूजियम। इट इज़ हाईलाइट्स इंक्लूड्स द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द टॉम्ब ऑफ द टुटनखामुन एंड रॉयल ममी रूम, ठीक है। और ये कितने पे इजिप्टियन म्यूजियम इन्हों बोलते हैं, ठीक है। और कैरो इजिप्ट विच पाया जाता है, ठीक है। सब तो वर्ल्ड बेस्ट म्यूजियम है, ठीक है। और बहुत सारिया चीज़ां ये रॉयल फैमिली नाल रिलेटेड पाई जांदियां। नैक्सट आ जाता बेटा तुहाडे कोल जिहड़ी लार्जेस्ट मोस्ट प्रेस्टीजियस म्यूजियम ऑफ आर्ट एंड हिस्टरी नीदरलैंड, ठीक है। सो इसका नाम है बेटा तुहाडे सामने आ जाता रिज रिज म्यूजियम। सो ये कितने पाया जाता है? एम्स्टरडम में, ठीक है। हिस्टरी ऑफ न्यूजीलैंड ये हिस्टरी दसी हुई है म्यूजियम की, ठीक है। सो लार्जेस्ट और मोस्ट प्रीजियस म्यूजियम ऑफ आर्ट एंड हिस्टरी। फिर उस तो बाद आता इट हैज़ द बेस्ट कलैक्शन ऑफ यूरोपियन आर्ट। लार्जेस्ट म्यूजियम है स्पेन के इन्हें प्राडो म्यूजियम बोलते हैं, मैड्रिड में पाया जाता है। लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट म्यूजियम ऑफ इंडिया, इंडिया का यह पहला आया है, यदा नाम है इंडियन म्यूजियम, कोलकाता के पाया जाता है, ठीक है। सो ये सारे म्यूजियम तुहानूं पता होने चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजियम लार्जेस्ट कलैक्शन ऑफ एंशिएंट चाइनीज आर्टवर्क इन द वर्ल्ड। किहड़ा ऐसा म्यूजियम है जिथे चाइनीज़ जिहड़ियां लोगों के जिहड़े आर्टवर्क नूं संभाल के रखा है? नेशन पैलेस म्यूजियम बोलते हैं। चाइना के लोगों के द्वारा जिहड़ी आर्ट बनाई गई है उन्होंने इत्थे संभाल के रखा हुआ। द डैश इज़ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल म्यूजियम द वर्ल्ड आर्ट मॉडर्न आर्ट इन द वर्ल्ड। म्यूजियम ऑफ द मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क, ठीक है। दिस म्यूजियम हैज़ द लार्जेस्ट वन मैन कलैक्शन ऑफ द वर्ल्ड। एक बंदे की सारी कलैक्शन इत्थे पाई जाती है। सलारजंग म्यूजियम हैदराबाद है, ठीक है। सो ये सारे बेटा थोड़े चैप्टर्स 11 चैप्टर अपने कंप्लीट कर लिया। सो नैक्सट असी अगे भी करांगे। सो ये तेल इत्थे तक तुसी कंप्लीट कर लो चंगी तरह। कोई प्रॉब्लम आई तो तुसी डिस्कस कर सकते हो। और प्लीज़ क्वेश्चनस में चंगी तरह पढ़ो, ठीक है। मैं थोड़ा जो पहला टैसट लिया बहुत बच्चों ने गलतियाँ भी की, बहुत अच्छा टैसट भी होया। सो जिहड़ियां गलतियाँ की बेटा उन्होंने दोहराओ ना, ठीक है। रिपीट ना करो, मेरे कहने का मतलब है। तो चंगी तरह उन्होंने पढ़ो, क्योंकि ये जी जनरल नॉलेज है बेटा थोड़िया हाईयर क्लासिस जो तुम कंपीटेटिव एग्जाम्स देने जॉब्स वास्ते, ये तुहानूं उस टाइम पर भी काम आऊगी। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।